بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سلطان محمود غزنوی اور ہندوستان، ایپیسوڈ نمبر 7۔ موجودہ رنگ محل میں اپنے قیصر نما حویلی میں ایک روز پنجاب کا راجہ آنند پال اپنی بہن کوشل دیوی اور اپنے بیٹے جے پال کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا۔ تینوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے۔ آنند پال کے باپ کا نام بھی جے پال تھا اور بیٹے کا نام بھی اس نے جے پال رکھا تھا۔ تاریخ کے اوراق میں اسے دوسرے جے پال کو جے پال ثانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ راجہ آنند پال کا یہ محل اس سے پہلے اس کے باپ جے پال کے تصرف میں بھی رہا تھا۔ باہر سے یہ بہت بڑی حویلی لگتا تھا، لیکن اندر داخل ہونے کے بعد اس کی سجاوٹ تزئین دیکھ کر انسان دنگ رہ جاتا تھا۔ بعد کے دور میں اس جگہ شاہ جہاں کے وزیر نواب سعد الدین خان نے ایک محل تعمیر کرنے کی ابتدا کی، جس کی تکمیل اس کی وفات کے بعد اس کے بیٹے نواب میاں خان نے کی۔ اسی نسبت سے راجہ آنند پال کا یہ محل حویلی میاں خان کے نام سے مشہور ہوا۔ یہ نواب چنیوٹ کے رہنے والے تھے۔ یہ حویلی اپنی ابتدائی حقیقی شکل میں طول و عرض میں 2 میل رقبہ پر محیط تھی۔ اس کی ایک عمارت میں آبی ضروریات کی تکمیل کے لیے 10 کنویں موجود تھے۔ یہ حویلی 3 حصوں پر مشتمل تھی، یعنی مردانہ، زنانہ اور قلعی خانہ۔ مردانہ زنانہ تو مالکان کی رہائشی حصے تھے اور قلعی خانہ سے مراد گھریلو امور کی ضروریات کی تکمیل کے لیے تھے، مثلا درزی خانہ، دھوبی خانہ، اناج پیسنے کے لیے خراس، باورچی خانہ اور برتنوں کی پالش کے لیے قلعی خانہ اور ملازمین کی رہائش گاہیں۔ ان تینوں درجات میں قلعی خانہ سب سے چھوٹا تھا۔ بہرحال راجہ جے پال اور راجہ آنند پال کی اس حویلی پر پہلے نواب سعید اللہ نے پہلی عمارت کو گرا کر اپنا محل تعمیر کیا۔ اس کے بعد یوں ہوا کہ برطانوی عہد حکومت میں صرف اسی قلعی خانے میں چاٹ قوم کی خراسیوں نے دالیں اور اناج پیسنے کے لیے 200 سے زیادہ چکیاں نصب کر دی تھی اور تقریباً 4000 افراد اس میں آباد تھے۔ بہرحال آنند پال، کوشل دیوی اور جے پال تینوں کسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ اس کمرے کے دروازے پر آنند پال کے محافظ دستوں کا سالار نمودار ہوا اور آنند پال کو مخاطب کر کے کہنے لگا، مہاراج، آپ نے جن مخبروں کو اپنی بہن کاشی کماری کی تلاش کے لیے مقرر کیا تھا، ان میں سے 3 واپس آئے ہیں اور وہ آپ پر کوئی اہم انکشاف کرنا چاہتے ہیں۔ اس سالار کے اس انکشاف پر آنند پال ہی نہیں، کوشل دیوی اور جے پال بھی چونکے تھے۔ چنانچہ آنند پال نے فوراً اسے مخاطب کیا، انہیں فوراً میرے پاس بھیجو، میں دیکھتا ہوں وہ کیا کہتے ہیں۔ اس پر وہ سالار پیچھے ہٹ گیا۔ تھوڑی دیر بعد 3 اشخاص اس کمرے میں داخل ہوئے۔ آنند پال نے اپنے سامنے جو نشستیں خالی پڑی ہوئی تھی ان پر انہیں بیٹھنے کے لیے کہا۔ جب وہ بیٹھ گئے تب آنند پال نے انہیں مخاطب کیا، اب کہو تم کیا کہنا چاہتے ہو اور کیا تم میری بہن کاشی کماری سے متعلق کوئی خبر لے کر آئے ہو؟ اس پر ان میں سے ایک اپنے ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے کہنے لگا، آپ کا اندازہ درست ہے، ہم کاشی کماری سے متعلق ہی خبر لے کر آئے ہیں۔ اس مخبر کے ان الفاظ پر تینوں بڑے انہماک اور غور سے اس کی طرف دیکھنے لگے تھے، یہاں تک کہ وہی مخبر بولا اور کہنے لگا، آپ کی بہن کاشی کماری اس وقت غزنی شہر میں ہے اور وہ سلطان محمود غزنوی کے نامور سالار عبداللہ قراتگین کی بیوی ہے۔ اس مخبر کی اس انکشاف پر آنند پال، کوشل دیوی اور جے پال تینوں چونک اٹھے۔ چنانچہ احتجاجی انداز میں پہلے کوشل دیوی بول اٹھی، یہ کیسے ممکن ہے، وہ غزنی کیسے پہنچ گئی؟ اس پر وہی مخبر بولا اور کہنے لگا، میں آپ کو اس کی تفصیل بتاتا ہوں۔ دراصل جب سلطان محمود غزنوی کے سالار عبداللہ نے انفرادی مقابلہ کھوکھروں کے سالار اور سربراہ نندی وردن کے ساتھ ہوا اور اس وقت آپ دونوں بہنیں اپنے گھوڑوں پر سوار ایک بلند جگہ کھڑی ہو کر یہ انفرادی مقابلہ دیکھ رہی تھی، جس وقت عبداللہ قراتگین نے نند وردن پر غالب آنا شروع کیا، اس وقت آپ بڑے غور اور انہماک سے یہ معاملہ دیکھ رہی تھی، جبکہ آپ کی بہن کاشی کماری بڑی رازداری سے وہاں ہٹ گئی تھی، کیونکہ وہ بلند جگہ ایک طرح کا ریت کا ٹیلا تھا، لہٰذا اس کے ہٹنے کو آپ نے محسوس نہیں کیا۔ وہاں سے ہٹ کر کاشی کماری اپنے پڑاؤ کی طرف آئی اور پھر پڑاؤ سے بھی 1 میل پیچھے چلی گئی۔ اس کے بعد اس نے اپنی گھوڑے کی باگیں موڑی اور گھوڑے کو باگیں کی طرف ایک لمبا چکر لگایا اور سیدھی مسلمانوں کے لشکر میں گئی۔ مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچ کر اس نے وہاں موجود مسلمانوں کے لشکر کے قاضی شیراز کے پاس جا پناہ لی۔ یہاں تک کہنے کے بعد وہ مخبر رکا۔ اس کے بعد اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ کہہ رہا تھا، میں آپ سے کوئی چیز چھپاؤں گا نہیں۔ دراصل محمود غزنوی کے سالار عبداللہ قراتگین نے جو پہلے کوئی راج، پھر راج کنور، اس کے بعد نندی وردن کو بھی اپنے سامنے زیر کیا، تو اس کی کارگزاری، اس کی ہمت، جرأت مندی اور تیغ زنی میں اس کی مہارت اور ہنر مندی سے کاشی کماری بے حد متاثر ہوئی، لہٰذا اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ ایسے شخص کو اپنی زندگی کا ساتھی بناؤں گی۔ اس بنا پر وہ چکر کاٹ کر مسلمانوں کے پڑاؤ میں پہنچے اور قاضی شیراز کے یہاں اس نے پناہ لی۔ جب جنگ ختم ہوئی تو قاضی شیراز کے ساتھ ہی
काशी कुमारी गजनी चली गई। वहां उसने काजी शिराज के यहाँ इस्लाम कबूल किया। इस्लाम के अरकान सीखी, इबादत के सारे तरीके सीख कर सच्चे दिल से उसने इस्लाम कबूल कर लिया। उसके बाद उसने काजी शिराज पर जोर दिया कि अगर हो सके तो अब्दुल्ला से उसकी शादी का एहतमाम कर दिया जाए, क्योंकि वो उसे पसंद करती है, उससे मोहब्बत करती है। चुनांचे उसके इन जज्बात का इजहार काजी शिराज और उसके बेटे मुहिबुद्दीन ने अब्दुल्ला करातगीन के बाप और उसके अहले खाना से किया। चुनांचे इस बात को तस्लीम कर लिया गया और अब्दुल्ला करातगीन और काशी कुमारी की शादी का एहतमाम कर दिया गया। अब इस वक्त काशी कुमारी गजनी में है और अब्दुल्ला की बीवी की हैसियत से अपनी जिंदगी चुनांचे इस बात को तस्लीम कर लिया गया और अब्दुल्ला और काशी की शादी का एहतमाम कर देगा। अब इस वक्त काशी गजनी में है और अब्दुल्ला की बीवी की हैसियत से अपनी जिंदगी के दिन हंसी खुशी गुजार रही है। जब वो मुखबिर खामोश हो तब कौशल देवी ने एक लंबा सांस लिया और कहने लगी, हालात भी इंसान को कहां से कहां पहुंचा देते हैं। सुल्तान महमूद का वो सालार नाम जिसका अब्दुल्ला है और जिसने अपने हाथ से कत्ल करने का इरादा किया, मैंने उसी से जाकर मेरी बहन ने शादी कर ली है। क्या ये तब्दीली और इनकलाब हैरत अंगेज नहीं है? और सबसे ताजुब की बात है कि अब्दुल्ला से अपनी इस चाहत और मोहब्बत का कभी उसने मुझसे जिक्र तक नहीं किया। हालांकि मेरी ऐसी बहन है कि उसने कभी भी अपनी कोई बात, अपना कोई फैसला मुझसे छुपाना नहीं चाहा। इस पर अनंतपाल गौर से अपनी बहन कौशल देवी की तरफ देखते हुए कहने लगा, कौशल मेरी बहन, सबसे पहली बात जिस पर मैं किसी कदर सुकून महसूस करता हूँ वो ये कि कम से कम काशी कुमारी का पता चल गया है और ये भी मालूम हुआ कि वो जिंदा और खुश है। जहाँ तक तुम्हारा इरादा है कि अब्दुल्ला करातगीन को अपने हाथ से कत्ल करूंगी, इसमें मैं कभी आड़े नहीं आऊंगा, इसलिए कि अब्दुल्ला कोई राज का कातिल है जिसे तुमने पसंद किया था। इस पर कौशल देवी कहने लगी, नहीं भाई, आपकी बात, आपके अल्फाज हकीकत से दूर है। मैंने कभी किसी भी मौके पर कोई राज की जात से मोहब्बत नहीं की थी। मैंने पहले भी एक बार इंकशाफ किया था कि मैंने सिर्फ कोई रात की तेज जनी और हरब व ज़रब में उसकी हुनरमंदी को चाहा था, कोई रात से कभी मोहब्बत नहीं की थी। लेकिन जिस वक्त अब्दुल्ला करातगीन के हाथों कोई रात जेर और मगलूब हो गया, तब मुझे एहसास हुआ कि कोई राज तो तेज जनी में कुछ भी नहीं था। अब्दुल्ला उससे बहुत आगे, अब्दुल्ला अच्छा है और बहुत अरफा है। इसके बाद ये मामला वही खत्म हो गया, इसलिए कि कोई राज को कभी मैंने अपने दिल में जगह नहीं दी थी। कौशल देवी जब खामोश हुई तब अनंतपाल ने गुफ्तगू को आगे बढ़ाया और कहने लगा, कौशल मेरी बहन, काशी ने अगर तुम पर कभी अपनी मोहब्बत का इजहार नहीं किया तो अब मैं महसूस करता हूँ कि उसने बातों बातों में मुझे और तुम्हें इशारा दे दिया था कि वो किसी से मोहब्बत करती है। अनंतपाल के इन अल्फाज पर कौशल देवी गौर से अपने भाई अनंतपाल की तरफ देखने लगी, कहने लगी, भाई मैं आपका मतलब समझी नहीं, किस मौके पर उसने इशारा दिया था? अगर उसने कोई ऐसा इशारा दिया होता कि वो किसी और को पसंद करती है तो मैं उसे समझाती कि अब्दुल्ला के अलावा वो जिसे भी चाहेगी हम उसकी मोहब्बत और चाहत का एहतराम करेंगे। इस पर लम्हे भर के लिए अनंतपाल के चेहरे पर मुस्कुराहट नमदार हुई। फिर कौशल देवी को मुखातिब करते हुए कहने लगा, मेरी बहन, तुम्हें याद होगा कि जब राज कुन्नूर इनफरादी मुकाबले में अब्दुल्ला करातगीन के हाथों मारा गया और हमें शिकस्त का सामना करना पड़ा और हम मैदान जंग से भागकर नगरकोट की तरफ आए, तब एक रोज बीढ़ के राजा प्रेमदेव का कासिद मेरे पास आया। मेरी बहन, उस वक्त तुम भी मेरे पास बैठी हुई थी और प्रेमदेव के इस कासिद ने यह मुतालबा किया था कि काशी कुमारी की क्योंकि सगाई और मंगनी बीढ़ के राजकुमार राज कुन्नूर के साथ तय हो गई थी, लिहाजा काशी कुमारी के साथ बीढ़ वालों का एक रिश्ता कायम हो चुका था। उस मुखबिर ने भी कहा था कि क्योंकि इनफरादी मुकाबले में राज कुन्नूर अब्दुल्ला के हाथों मारा गया, लिहाजा काशी कुमारी के साथ जो बीढ़ वालों का रिश्ता है वो कायम दायम है, इसे खत्म नहीं किया जाएगा। लिहाजा प्रेमदेव ने मुतालबा किया था कि अब काशी की उसके दूसरे बेटे गोविंद राज के साथ ब्याह दिया जाए। मेरे बहन, तू जानते कि मैंने प्रेमदेव के काशी से कहा था कि ये मामला चूंकि मेरी बहन का है, लिहाजा ये फैसला भी वही करेगी, मैं उस पर अपना कोई फैसला ठोसूंगा नहीं। चुनांचे तुझे याद होगा कि हम दोनों बहन भाई की मौजूदगी में काशी ने कहा था कि मैं किसी की दैबल, किसी के रखे नहीं हूं कि जो चाहे मुझे ले जाए। उसने कहा था कि मैं बीढ़ के दूसरे राजकुमार गोविंद राज के साथ शादी करने से इनकार करती हूँ और ये कि अब मैं शादी अपनी मर्जी से करूंगी। यहाँ तक कहने के बाद अनंतपाल रुका, फिर कौशल देवी की तरफ गौर से देखते हुए कहने लगा, कौशल मेरी बहन, जरा काशी के इन अल्फाज पर गौर किया, तुम्हारे जहन में ये नहीं आता कि इसने कहा था कि अब वो शादी अपनी मर्जी से करेगी। इसके अल्फाज बताते हैं कि वो अपनी मर्जी को कहीं पुष्ट कर चुकी थी, किसी की मोहब्बत को उसने अपने दिल में जगह दी थी और उसने ये भी ठान रखी थी कि वो किसी अपनी जिंदगी का साथी बनाएगी। मेरे ख्याल में वही वक्त था जब वो अब्दुल्ला करातगीन की तरफ माइल हो गई थी और उसने अपनी जिंदगी का साथी बनाने का तहिया कर लिया। लेकिन वो मौके की तलाश में रही कि कोई ऐसा मौका उसे मिले कि वो खैरियत और तहफ़्फ़ुज़ के साथ अपने लश्कर से निकलकर मुसलमानों के लश्कर में जाए और वहाँ किसी के यहाँ पनाह ले। उसके बाद अब्दुल्ला से अपनी मोहब्बत और चाहत का इजहार करे और तू देखी कि काशी ऐसा करने में कामयाब हो गई। महल के उस कैसर में कुछ देर तक गहरी खामोशी तारी रही। कौशल देवी की गर्दन झुकी हुई थी और वह अनजानी सोचों में खोई हुई थी। अनंतपाल और उसका बेटा जयपाल दोनों बड़े गौर से उसकी तरफ देखे जा रहे थे।
यहाँ तक कि कौशल देवी ने अपनी गर्दन सीधी की, अपने भाई अनंतपाल की तरफ देखा, फिर धीमे और दुख भरी आवाज में कहने लगी, भाई क्या ऐसा मुमकिन है कि हम अपने कासिद गजनी सुल्तान महमूद की खिदमत में रवाना करें और उससे ये मुतालबा करें कि हमारी बहन काशी कुमारी उस वक्त गजनी में है, लिहाजा वो उसे वापस हमारे पास लाहौर पहुंचाया जाए। अनंतपाल ने गहरी निगाह कौशल देवी पर डाली, फिर कहने लगी, तुम उसे लाहौर बुलाकर क्या करोगी? क्या उसे सजा दोगी? उसे बांध कर मार पीटूंगी और उसे ये कहूंगी कि वो अपने दिल से अब्दुल्ला की मोहब्बत निकाल दे? अगर वो ऐसा नहीं करती तो क्या तुम अब्दुल्ला की तरह उसका भी काम तमाम कर दोगी? अनंतपाल के अल्फाज पर कौशल देवी कांप सी गई थी। बड़ी तेजी से उसने अपने सर को नफी में हिलाया, फिर कहने लगी, मैं अपनी बहन के साथ ऐसा मामला कैसे और क्यों कर सकती हूँ? अगर वो गजनी लाहौर वापस पहुंच जाती है तो मैं पहले की निस्बत ज्यादा प्यार और मोहब्बत दूंगी और कोशिश करूंगी वो हमारे अंदर रहे और यहाँ के किसी और से शादी कर ले। कौशल देवी के अल्फाज के जवाब में अनंतपाल के चेहरे पर तंजिया से मुस्कुराहट नमदार हुई, फिर कहने लगा, कौशल तुम्हारी बातें बचकाना है। तुम अपने बचपने से निकलकर शबाब में तो दाखिल हो गई हो, लेकिन तुम्हारी बातें भी बचपने में है। पहली बात यह कि अगर हम गजनी कासिद भेजते हैं और सुल्तान महमूद से मुतालबा करते हैं कि वो काशी कुमारी को हमारे पास भेज दे, तो सुल्तान महमूद काशी कुमारी पर जबर तो नहीं करेगा, इसलिए कि ना वो हमारा मातहत है, ना वो हमारा फरमाबरदार है, ना हमारा खिराज गुजार है, बल्कि हम उसके मातहत, उसके फरमाबरदार, उसके खिराज गुजार है। वो जबरदस्ती तो ऐसा नहीं करेगा और ना उससे जबरदस्ती मुतालबा पूरा करा सकती है। वो ज्यादा से ज्यादा मामला की तहकीक करने के बाद हमें पैगाम भिजवा सकता है कि काशी कुमारी चूंकि अपनी मर्जी से लश्कर में दाखिल हुई थी, अब्दुल्ला की मोहब्बत उसे खींच कर वहां ले गई थी, अपनी मर्जी से उसने इस्लाम कबूल किया है और अपनी मर्जी से वो अब्दुल्ला की बीवी बन गई है, लिहाजा उस पर जबर नहीं किया जा सकता। अगर सुल्तान ने बहुत ज्यादा भी किया तो उस सिलसिले में काशी कुमारी से पूछ सकता है कि वो अब्दुल्ला की बीवी की हैसियत से गजनी में रहना चाहती है या वापस लाहौर का रुख करना चाहती है। कौशल मेरी बहन, अब तू ये बता कि अब्दुल्ला से मुतालिक तेरा क्या ख्याल है? अब वो काशी का शोहर है, क्या अब भी तुम उसको कत्ल करने की अपनी सौगंध पर कायम हो? कौशल देवी की गर्दन दुख भरे अंदाज में झुक गई, उसने कोई जवाब न दिया, गहरी सोचों में खो गई। अनंतपाल गौर से उसकी तरफ देखता रहा, यहाँ तक कि उसको तसल्ली और तशफीक की खातिर कहने लगा, अगर तुम्हारे कहने पर हम गजनी की तरफ कासिद भेज दे तो सुल्तान महमूद को हम मुतमईन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा काशी से पूछ सकता है कि वो गजनी में रहना चाहती है या अपने भाई और बहन के पास लाहौर जाना पसंद करेगी। कौशल, तुम जानते हो काशी का क्या जवाब होगा? चूंकि उसने अब्दुल्ला से मोहब्बत की है, ये शादी भी मोहब्बत के तहत है, लिहाजा उसका यही जवाब है कि वो अपने शोहर के पास गजनी में रहेगी। ऐसी सूरत में हम क्या कर सकते हैं? हमारे पास यही एक हरबा होगा कि हम खामोश रहे। अपने भाई अनंतपाल की गुफ्तगू का जवाब कौशल देवी देती, पर उस मौके पर अनंतपाल का चौधर आया और उस पर इंकशाफ किया कि मुस्तकिल में सालार उसका इंतजार कर रहे हैं ताकि वो उन लश्करियों का मायना करे जिन्हें लश्कर में नया भर्ती किया गया है और जिनकी तरबियत का काम मुकम्मल हो गया था। ये पैगाम सुनते ही अनंतपाल उठ खड़ा हुआ, कौशल देवी और जयपाल भी खड़े हो गए। फिर तीनों रंग महल के उस केसर से निकलकर लाहौर में अपने मुस्तकिल का रुख कर गए थे। एक रोज अब्दुल्लाह का बाप करातगीन काशी कुमारी और उसके भाई संजर की बीवी अरजान के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि अब्दुल्ला का भाई संजर दीवान खाने में दाखिल हुआ। शायद वो बाजार में अपनी दुकान बंद करके आया था। दीवान खाने में दाखिल होते ही उसने पहले जायजा लिया, फिर अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा भाई कहाँ है? इस पर करातगीन बड़ी शफकत में कहने लगा, बेटे वो तो काफी देर का गया हुआ है, नियालकिन भी उसके साथ ही है, अभी तक लौट कर नहीं आया। दोनों को सुल्तान ने तलब किया था, मेरे ख्याल में कोई नई मुहिम दरपेश है। इस पर संजर कहने लगा, लेकिन भाई नियालकिन तो मेरे आगे आगे हवेली में दाखिल हुए हैं, मैं तो ये समझा था कि भाई भी आ गए होंगे, इसी बिना पर मैं हवेली के सदर दरवाजे को अंदर से जंजीर लगा कर आया हूँ। संजर यही तक कहने पाया था कि हवेली के दरवाजे पर दस्तक हुई। उस पर संजर के चेहरे पर मुस्कुराहट हुई, फिर कहने लगा, शायद भाई आ गए हूँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। इसके साथ वो भागता हुआ हवेली के सदर दरवाजे की तरफ लपका। जब उसने दरवाजा खुला तो अपने घोड़े की बाग पकड़े अब्दुल्ला हवेली में दाखिल हुआ। इतनी देर तक उसका बाप करातगीन, संजर की बीवी अरजान और काशी कुमारी तीनों बाहर आ गई। इस मौके पर काशी कुमारी भाग कर आगे बढ़ी। उसने मुस्कुराते हुए अब्दुल्ला का स्वागत किया। फिर जब उसने अब्दुल्ला से उसके घोड़े की बाग लेना चाहिए तब अब्दुल्ला मुझसे कुछ ना बोला, मुस्कुराया और नफी में गर्दन हिलाई। इस पर काशी कुमारी भी बड़े प्यार से उसकी तरफ देखते हुए कहने लगी, आप सबके साथ दीवान खाने में चले, मैं घोड़े को बांध कर आती हूँ। ये सारा मंजर संजर बड़े गौर से देख रहा था। फिर काशी कुमारी को मुखातिब करके कहने लगा, आप मेरी बहन है, रिश्ते में मुझसे बड़ी है, हो सकता है आप मेरी बीवी अजान से छोटी हो, लेकिन रिश्ते में बड़ी होने की वजह से आप मेरी माँ की जगह हमारे होते हुए अगर भाई के घोड़े की बाग पकड़कर आप अस्तबल की तरफ ले कर जाएंगी तो मेरे ख्याल में इससे बढ़कर हमारे लिए लानत का कोई मकाम नहीं हो सकता। संजर के अल्फाज पर सब मुस्कुरा दे। फिर संजर आगे बढ़ा, अपने भाई के घोड़े की बाग उसने पकड़ी, कहने लगा, भाई आप अंदर चले, मैं घोड़ा बांध कर आता हूँ।
इसके साथ ही संजर घोड़े को अस्तबल की तरफ ले गया। सब दीवान खाने में दाखिल हुए। घोड़े को बांध कर संजर भी वहां आ गया था। यहाँ तक कि करातगी ने अब्दुल्ला को मुखातिब किया, बेटे तुम काफी देर गए हुए थे, कहाँ रहे? सुल्तान ने क्यों बुलाया था? क्या कोई मुहिम दरपेश है? इस पर अब्दुल्ला करातगीन कहने लगा, बाबा आपका अंदाजा दुरुस्त है। इस वक्त 3 मकाम हमारे लिए सरवरी पैदा कर रहे हैं, एक मुल्तान, दूसरा गौर, तीसरा हिरात, और तीनों जगह पर करामती अपने रंग दिखा रहे हैं। गौर और हिरात के हाकिम मोहम्मद बिन सूरी करामती होकर अलम बगावत बुलंद कर चुका है और सुल्तान की इताअत और फरमाबरदारी से निकल गया है। दूसरी तरफ मुल्तान में भी हालत बड़े इब्तर और तशवीशनाक है। देर इसलिए हो गई कि सुल्तान ने सारे सालारों और उमरा को बुलाया था और उन्हें तीनों शहरों से मुतालिक गुफ्तगू होती रही। चुनांचे फैसला हुआ कि लश्कर पहले गौर और हिरात के हाकिम मोहम्मद बिन सूरी को सरगोबी के लिए निकलेगा। लश्कर कल यहाँ से कूच करेगा और गौर का रुख करेगा। अब्दुल्लाह करातगीन की इस गुफ्तगू से काशी कुमारी उदास और अफसुदा दिखाई देने लगी। इस मौके पर करातगीन बड़े गौर से उसके चेहरे का जायजा ले रहा था। यहाँ तक कि उसने अपने बेटे अब्दुल्ला को मुखातिब किया, बेटे पहले ये बताओ क्या लश्करी और सालार अपने अहले खाना को भी साथ ले जा सकते हैं? इस मौके पर अब्दुल्ला ने गहरी निगाह अपने करीब बैठी काशी कुमारी पर डाली, फिर मुस्कुराकर कहने लगा, बाबा सुल्तान ने सालारों और लश्करियों की इजाजत दे रखी है कि अपने अहले खाना को अपने साथ ले जा सकते हैं। इस मौके पर काशी कुमारी के चेहरे पर रौनक और आंखों में चमक पैदा हुई थी। यहाँ तक कि करातगीन फिर बोल उठा, बेटे जिस वक्त तुमने अपनी रवानगी का बताया था मैं अपनी बेटी काशी का बहुत गौर से जायजा ले रहा था। इस बेचारे का चेहरा उदास हो गया था, आंखों के अंदर अफसुदगी उतर आई थी, लिहाजा उस मुहिम में ये तुम्हारे साथ जाएगी। करातगीन की अल्फाज पर काशी कुमारी मुस्कुराती रही। उसी मुस्कुराहट में उसने जब गौर से अपनी पहलू में बैठे अब्दुल्लाह की तरफ देखा, तब करातगीन अपने बाप की तरफ देखते हुए कहने लगा, बाबा आपका कहना दुरुस्त है, काशी मेरे साथ जाएगी। अभी तक मेरे ख्याल में गजनी के माहौल में जज़ब नहीं होने पाई, लेकिन मुझे उम्मीद है कि यहाँ तक कहते कहते अब्दुल्लाह को रुक जाना पड़ा, इसलिए कि धीमे से लहजे में उसकी तरफ देखते हुए काशी बोल उठी, ऐसी कोई बात नहीं, आखिर ये मेरा घर है। अगर आप मुझे अपने साथ भी ना ले जाना चाहे तो भी मैं अपना घर में क़याम करके भी आपका इंतजार कर सकती हूँ। अब्दुल्ला मुस्कुरा कहने लगा, काशी मैं जानता हूँ तू बड़ी दिलेर और बड़ी वफा और जरूरतमंद लड़की है। बहरहाल इस मुहिम में तू मेरे साथ जाएगी और साथ ही मैं तुमसे ये कहता हूँ कि आज रात को अपनी तैयारी मुकम्मल कर लेना। लश्कर फजर की नमाज के बाद यहाँ से कूच करेगा। इस मौके पर संजर की भी अजान अपनी जगह पर उठी और कहने लगी, पहले खाना लगाते हैं, सब मिलकर खाना खाएंगे, उसके बाद कूच की तैयारी की जाएगी। सबने इससे इत्तेफाक किया। जब अजान उठी तब काशी भी अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। दोनों ने खाना लगाया, सबने मिलकर खाना खाया। उसके बाद अब्दुल्ला और काशी दोनों उठकर अपने ख्वाबगाह की तरफ चली गई और अपनी तैयारी को आखिरी शक्ल देने लगी थी। अगले रोज लश्कर ने गजनी से गौर और हिरात की तरफ कूच किया था। सुल्तान महमूद गौर और हिरात पर कभी हमलावर ना होता और ना ही वहां रज़मगाह बर्पा करता, लेकिन गौर और हिरात के इलाके में करामाता ने शोरश बर्पा कर रखी थी और वहां का हाकिम मोहम्मद बिन सूरी करामाती होकर सुल्तान महमूद के खिलाफ बगावत और सरकशी इख्तियार करते हुए सुल्तान से टकराने पर उतर आया था। इस जगह ये बता देना भी जरूरी है कि उस जमाने में मिस्र के अंदर उब्दियों की हुकूमत बड़े जोर और शोर से कायम थी। उन्हीं उब्दियों को तारीख के अवराक में फातिमी में मिस्र भी कहते हैं। ये लोग खुद खिलाफत के मुद्दई और बगदाद के खिलाफत के रकीब और जानी दुश्मन थे। सुल्तान महमूद अब्बासियों की तरफदार और अपने आप को अब्बासी खलीफा का खादिम जानता था। मिस्र का फरमारवा हाकिम बिन अजीज उब्दी था। हाकिम बिन अजीज उब्दी को सुल्तान की रोज बरोज ताकत और शोहरत के मिटाने और नुकसान पहुंचाने का बहुत ख्याल और शौक था। करामतियों की बीक करने और बर्बादी के लिए सुल्तान ने सिंध, सिस्तान और खुरासान वगैरह में जो कोशिश की थी, उन सब का हाल सुनकर मिस्र का हुक्मरान हाकिम उब्दी महमूद गजनवी का जानी दुश्मन बन गया था। उसने एक बार सुल्तान महमूद के पास अपना इल्ची भी मिस्र से गजनी भेजा। चूंकि जिस कासिद को उसने भेजा था वो करामती था, लिहाजा करामती होने की वजह से सुल्तान ने उससे गुफ्तगू नहीं किया और उसे जलील करके निकलवा दिया था। हाकिम बिन अजीज उब्दी अगरचे करामती ना था, लेकिन उसको करामता से इसलिए हमदर्दी थी कि करामता से उसका मसलब कुछ मिलता था। नीज़ है कि अब तक करामता की तमाम तर कोशिशें खिलाफत अब्बासिया और उसके मुतवासिलीन को नुकसान पहुंचाने में सर्फ हुई थी। उस जमाने में करामता भी हाकिम बिन अजीज उब्दी को अपना सरदार और मुरब्बी मानने लगी थी, चूंकि हाकिम उब्दी ने उनकी हिम्मत अफजाई की थी। इसके अलावा हिंदुस्तान में जो तहरीक बरहमनों की कोशिश से नशोनुमा बरपा थी, उसमें शुरू ही से करामता शरीक थे और उन्होंने हाकिम बिन अजीज उब्दी से इमदाद तलब की थी। अब हाकिम उब्दी को अनंतपाल की तैयारी और हमलावरों का बखूबी इल्म था। यही वजह थी कि जिस वक्त अनंतपाल सुल्तान महमूद के साथ पेशावर के नवाह में टकराया था तो गुजरात तक का लश्कर उसकी मदद के लिए आए थे। किसी करामता का मारका पेशावर में अनंतपाल के वजीर आलम मौजूद ना हो सका।
मगर करामता ने अपने लिए दूसरा मैदान तजवीज़ कर लिया और हिंदुओं को उसका आलम दिया। इसलिए उन्होंने करामता को पेशावर की तरफ आने की जहमत भी नहीं दी थी। इस मामले की मजीद तफसील कुछ इस तरह कि मिस्र से कुछ जहाज इमदादी लश्कर सामान लेकर सिंध की बंदरगाह देवल पहुंचे थे। उसके साथ ही मिस्र के हुक्मरान हाकिम बिन अजीज उब्दी के कुछ सफीर मुल्तान के हाकिम दाऊद बिन नजर के पास आए थे। चूंकि दाऊद बिन नजर भी करामती था, उसको खलीफा मिस्र यानी हाकिम बिन अजीज उब्दी की बैत पर आमदा करके महमूद गजनवी के खिलाफ जंग पर मुस्तैद किया गया। चुनांचे जो जहाज मिस्र से आए थे वो दैबल की बंदरगाह पर लंगर अंदाज हुए। उनमें जो मिस्री लश्कर आया था वो मुल्तान पहुंचा। इस मौके पर दूर व नजदीक और आसपास के करामती भी मुस्लिम होकर मुल्तान पहुंचे। इस तरह मुल्तान में करामतियों का एक बहुत बड़ा इज्तिमा हुआ था। यही वक्त था जब उन्हें करामतियों के लश्कर का एक हिस्सा गौर के जाहिल और पहाड़ी इलाकों में खुफिया तौर पर पहुंच चुका था। उधर अनंतपाल ने लाहौर से पेशावर की जानिब कूच किया। उधर मिस्री सफीरों और करामती मुनाजरों ने मोहम्मद बिन सूरी और उसके नवाह के जाहिल रियाया को सुल्तान के खिलाफ भड़काया था। सुल्तान महमूद ने इन्हीं करामतों का जोर तोड़ने और उनकी कार्रवाई का सदेबाब करने के लिए गौर और हिरात और उसके नवाही इलाकों का रुख किया था। गौर और हिरात की इस मुहिम में सुल्तान अपना आधा लश्कर लेकर रवाना हुआ था और आधे लश्कर को अपने मरकजी शहर गजनी में ही छोड़ गया था। अपने बड़े सालारों में से अब्दुल्ला, ताई, अरसलान और कुछ दूसरों को भी उसने गजनी में ही रखा था ताकि उसकी गैर मौजूदगी में किसी और सिम से कोई दुश्मन सर उठाए तो मुनासिब वक्त और अहसन तरीके से उस पर ज़रब लगाई जा सके। अपने साथ सुल्तान अयाज बिन इसहाक के अलावा अब्दुल्ला, करातगीन, नियालकीन और अल्तवान ताश को रखा। चुनांचे बड़ी तेजी से गौर के इलाकों की तरफ पेश कदमी करते हुए सुल्तान महमूद अपने लश्कर के साथ उस जगह जा पहुंचा जहां गौर और हिरात का हाकिम मोहम्मद बिन सूरी अपने लश्कर के साथ पड़ाव किए हुए था। इस तरह दोनों लश्कर एक दूसरे के आमने सामने पड़ाव कर गए थे। अगले रोज दोनों लश्करियों ने अपनी सफ़ें दुरुस्त करना शुरू की। सुल्तान महमूद गजनी से हस्बे मामूल अपने लश्कर को 3 बड़े और एक छोटे हिस्से में तकसीम किए। बड़े 3 हिस्सों में से एक हिस्सा अपने पास रखा और अयाज बिन इसाक को सुल्तान अपने साथ मरकजी हिस्से में रख लिया था। लश्कर के दाएं पहलू की कमांडरी अब्दुल्ला करातगीन और बाएं की सिपह सालारी अहमद नियालकीन को सौंपी गई, जबकि चौथा हिस्सा जो बाकी 3 हिस्सों की निस्बत छोटा सा था वो अल्तवान ताश की कमांडरी में दिया गया और उसे पड़ाव की हिफाजत पर मुकर्रर किया गया। इसके बाद जंग की इब्तिदा गौर और हिरात के करामती हुक्मरान मोहम्मद बिन सूरी ने की। चुनांचे उसने अपने लश्कर को क़िराए गुमनामी से निकलते खौफनाक नाग, आसेब, कांटेदार झाड़ियों, बिछाती हुमा, सोज मौसम और जमीन के सर्द मैदान से दफअतन उठती काली आंधियों की तरह आगे बढ़ाया। उसके बाद सुल्तान महमूद गजनवी के लश्कर पर भी खौफ भरी तारीखों में सीनों में आतिश फशा भरते, गर्म तुंद लावे की चीख चिल्लाते, खोलते लम्हों और दोजख नुमा माहौल में तिरतराते भरते खौफ की तरह हमलावर हुआ था। जवाबी कार्रवाई करते हुए सबसे पहले सुल्तान महमूद अपने हिस्से के लश्कर के साथ आगे बढ़ा। पहले उसने सायों को लर्जा माहौल को पाश पाश कर देने की तरह सहरा की तरह टूट पड़ा था। सुल्तान के साथ ही साथ अब्दुल्ला करातगीन ने अपने काम की इब्तिदा की। चुनांचे वो भी दुश्मन के बाएं पहलू पर मौत और हया का राज खोलते तकदीर की तरह दुश्मन पर टूट पड़ा था। अब्दुल्ला के साथ साथ अहमद नियालकीन भी अपने लश्कर को मुतहरिक कर चुका था। चुनांचे वो भी मोहम्मद बिन सूरी करामती के लश्कर के दाएं पहलू पर बड़ी तेजी के साथ हमलावर हुआ था। यूं गौर के नवाह में दोनों लश्कर भूखे प्यासे की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े थे। हर कोई सरकश आंधी और बेरोक तूफानों की तरह हमलावर होते हुए अपने मद्दे मुकाबिल को मजरूह और हरामा नसीब करने की कोशिश कर रहा था। कुछ देर तक दोनों लश्कर बड़े हौलनाक अंदाज में लड़ते रहे। मैदान जंग के अंदर बड़ी तेजी से मातमी साए देखते आग पुराशोब जख्म रक्स करने लगे थे। आखिरकार सुल्तान महमूद गजनवी ने करामतियों के इस लश्कर को बदतरीन शिकस्त दी और उनकी अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और गौर और हिरात के हुक्मरान मोहम्मद बिन सूरी को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार होते ही बकौल मौरखीन में खुदकुशी करके मर गया। जिस वक्त सुल्तान महमूद गजनवी गौर और हिरात के हुक्मरान मोहम्मद बिन सूरी के साथ मसरूफ जंग था, आयन उसी वक्त मुल्तान का हुक्मरान दाऊद बिन नजर अपने लश्कर को लेकर सुल्तान महमूद गजनवी के इलाकों में दस्त दराजी करने लगा था। शायद मुल्तान के हाकिम दाऊद बिन नजर को उम्मीद थी कि गौर और हिरात का करामती हुक्मरान सुल्तान महमूद को नुकसान पहुंचाने और उस पर हावी होने में कामयाब हो जाएगा। इसी बिना पर मुल्तान के हुक्मरान दाऊद बिन नजर ने इरादा किया कि उसी दौरान वो भी अपनी कार्रवाई की इब्तिदा करे और सुल्तान के इलाकों पर हमलावर होकर दूर तक तबाही और बर्बादी का खेल खेलने के साथ साथ अपने लिए फवाइद भी हासिल करे। चुनांचे गौर और हिरात के हुक्मरान को बदतरीन शिकस्त देने और उसका खात्मा करने के बाद सुल्तान ने अपने लश्करियों को सुस्ताने का मौका फराहम किया। उस वक्त तक सुल्तान के पास खबर पहुंच चुकी थी और उन्होंने मुखबिरों ने खबर दी कि सुल्तान को इत्तला कर दी कि मुल्तान का हाकिम दाऊद बिन नजर सुल्तान के इलाकों पर हमलावर होकर तबाही
और बर्बादी का खेल की इब्तिदा कर चुका है। जंग के बाद अब्दुल्ला करातगीन जब अपने खीमे के करीब आया तो उसने देखा कि खीमे के दरवाजे पर काशी कुमारी खड़ी थी। वो शायद बेचैनी और बेताबी से उसका इंतजार कर रही थी। अब्दुल्ला जब अपने खीमे के दरवाजे पर आया तब काशी कुमारी मुस्कुराते हुए कहने लगी, मैं आपको इस शानदार फतह पर मुबारकबाद देती हूँ। अब्दुल्ला करातगीन ने काशी का शुक्रिया अदा किया। खीमे में दाखिल हुआ। काशी उसके पीछे पीछे थी। अब्दुल्ला करातगीन जब अपने खीमे के वस्ती हिस्से में आया तब काशी कुमारी बड़े प्यारे अंदाज में हरकत में आई। अब्दुल्ला के कमर पर बंधी हुई चमड़े की पट्टी उसने खोली जिसमें उसकी तलवार और खंजर थे। उसकी पट्टी उसने एक तरफ रखी। फिर उसने अब्दुल्ला का हाथ थामा और उसके एक तरफ ले जाते हुए कहने लगी, आप खीमे से मिलकर तहारत खाने में नहाए, उसके बाद शायद खाना आ जाएगा। उसके साथ ही काशी कुमारी ने उसके एक नया लिबास निकाला और तहारत खाने के सामने जो रस्सी बंधी हुई थी उस पर लटका दिया। साथ ही बदन साफ करने के लिए एक साफ सुथरा अनकूचा भी रख दिया था। जिस वक्त काशी कुमारी सारे काम अब्दुल्ला के लिए कर रही थी तो अब्दुल्ला करातगीन लगातार उसे देखते हुए मुस्कुरा रहा था। अंगूछा रस्सी पर रखने के बाद काशी कुमारी जब पलटी तो उसने देखा कि अब्दुल्ला की निगाहें उस पर जमी हुई थी। तब मुस्कुराते हुए कहने लगी, आप मेरी तरफ ऐसे देख रहे हैं जैसे मैं आपके लिए अजनबी हूँ और मेरी और आपकी पहली मुलाकात है। इस पर अब्दुल्ला मुस्कुराते हुए कहने लगा, काशी तुम्हारा हुस्न, तुम्हारी खूबसूरती ऐसी है, जब भी तुम्हें देखूं यूं लगता है जैसे पहली बार देखा हूँ। काशी मुस्कुराते हुए आगे बढ़ी। प्यार भरी हल्की सी झपट उसने अब्दुल्ला करातगीन के हाथ लगाई। फिर कहने लगी, अच्छा पहले आप नहाए, मैं यहाँ बैठकर आपका इंतजार करती हूँ। इस पर अब्दुल्ला करातगीन तहारत खाने में घुसकर नहाने लगा। अब्दुल्ला करातगीन जब बाहर निकला तब काशी कुमारी तहारत खाने में दाखिल हुई। अब्दुल्ला ने जो खून आलूद लिबास उतारा था वो उसने धोकर साफ सुथरा करके वही एक रस्सी पर लटका दिया। इतनी देर तक अब्दुल्ला करातगीन खीमे के उस हिस्से में एक नशिस्त पर आ बैठा। काशी भी जब उसके पास बैठने लगी तब एक लश्करी उन दोनों मियाँ बीवी का खाना ले आया। अब्दुल्ला करातगीन ने आगे बढ़कर खाने का तश्त ले लिया। दोनों मियाँ बीवी खीमे के उस्त में बैठ गए, खाना खाने लगे। अगले वो सुल्तान महमूद गजनवी ने गौर से गजनी का रुख किया था। लश्कर के अंदर जो लश्करियों और सालारों के अहले खाना थे उन्हें गजनी ही में छोड़ गया। सुल्तान ने गजनी में अपने लश्कर को फिर इस्तिवार किया, मजीद दस्ते अपने लश्कर में शामिल किए। उसके बाद उसने बड़ी तेजी और बरक रफ्तारी से मुल्तान का रुख किया। चुनांचे दाऊद बिन नजर को जब पता चला कि सुल्तान महमूद गजनवी ने तो गौर और हिरात के क़यामती हुक्मरान मोहम्मद बिन सूरी को बदतरीन शिकस्त दी है और मोहम्मद बिन सूरी हिलाक हो चुका है, तब उसके पांव तले से जमीन निकल गई थी। और उस वक्त जो सुल्तान महमूद के इलाकों में तरकताज कर रहा था वो उसने भंग कर दिया और बड़ी तेजी से अपने लश्कर के साथ मुल्तान की तरफ भागा। लेकिन उसकी बदबख्ती के उस वक्त तक सुल्तान महमूद भी अपने लश्कर के साथ उसकी सरगोबी के लिए मुल्तान पहुंच चुका था। चुनांचे मुल्तान के नवाब में दोनों लश्करों के दरमियान घुमसान का रन पड़ा, जिसके दौरान सुल्तान महमूद गजनवी ने दाऊद बिन नजर को भी बदतरीन शिकस्त दी। दाऊद बिन नजर के लश्कर की अक्सरियत को मौत के घाट उतार दिया और दाऊद बिन नजर का अंजाम कार शिकस्त पाक गिरफ्तार हुआ। मुर्खी लिखते हैं कि उस जंग में बहुत से करामती तेग हुए और बाज को हाथियों के पांव तले कुचला दिया गया। मुर्खी में भी लिखते हैं कि करामाता को सुल्तान महमूद गजनवी ने निहायत तलाश और जुस्तजू के साथ गिरफ्तार करके उनका कत्लेआम किया। यूं गौर और मुल्तान की सूरश का बैक वक्त बर्पा होना और अनंतपाल की चढ़ाई के साथ उनके मकामात में भी अलम बगावत बुलंद होना साफ बताता है कि कैसी अजीमुशान साजिश थी। इस किस्म के खतरनाक साजिशों का इस्लाम और मुसलमानों के खिलाफ बर्पा होना कोई अजीब और गैर मामूली बात नहीं है। खिलाफत राशिदा के आखिरी ज़माने से जो ऐसी ही खतरनाक और बड़ी बड़ी साजिशों का सिलसिला सल्तनत इस्लामिया के खिलाफ शुरू हुआ है वो आज तक भी ख़त्म होने में नहीं आया। मुर्खीन ये भी लिखते हैं कि अगर सुल्तान महमूद गजनवी को पेशावर के मैदानों में शिकस्त हो जाती तो सिंध से लेकर अजरबैजान और बुखारा तक तमाम मुल्कों में करामाता या मिस्र के उब्दी यानी फातिमी मिस्र की हुकूमत कायम हो जाना यकीनी था और उसके साथ ही खिलाफत अब्बासिया का भी खात्मा हो जाता। गैर और मुल्तान की लड़ाई में महमूद को आसानी के साथ फतह हासिल नहीं हुई थी। ये लड़ाई पेशावर की लड़ाई से हरगिज कम खतरनाक न थी। गौर, हिरात और मुल्तान में उठने वाली बगावतों और सरकशियों का कीला कम करने के बाद सुल्तान महमूद ने अपनी तवज्जो थानसीर की तरफ की। गौर, हिरात और मुल्तान की सरगोबी करने के बाद अब बज़ाहिर सुल्तान महमूद के लिए कोई खतरा मौजूद नहीं था, लेकिन उसके असल दुश्मनों का एक हिस्सा अभी तक पसे पर्दा और महफूज था, जिससे सुल्तान महमूद गजनवी बखूबी वाकिफ और आगाह हो चुका था। करामाता को शुरू ही से जानता और उनके इस्तेहसाल के दर पे रहा था, लेकिन अब उसको मालूम हुआ कि हिंदुस्तान के ब्राह्मण जो मजहबी पेशवा होने के सबब वहाँ पर बड़ा असर रखते हैं वो भी करामाता के हम नवा और करामाता से कुछ कम खतरनाक नहीं है। अनंतपाल जब सुल्तान का फरमा रवा और बाज़गुज़ार बन चुका था, मुल्तान की रियासत जो अरसे से करामाता की ज़ेर असर और ज़ेर नगीन रही थी अब बाकायदा तौर पर सुल्तान की ममलिकत में शामिल हो चुकी थी। सुल्तान ने अपनी तरफ से वहाँ अपना एक आमिल मुकर्रर कर दिया, मगर सुल्तान को इस बात का बहुत ख्याल था कि जिस तरह पंजाब के सूबे कई मरतबा मुतय होने के बाद बागी हो चुके हैं अब फिर बागी ना हो जाए।
لہذا اس نے اس بات کا سراغ لگانے کے لیے کہ اننت پال کو بغاوت پر آمدہ کرنے کے لیے کون کون سی طاقتیں متحرک ہو سکتی ہے، اپنے سالاروں کا اجلاس طلب کر لیا۔ سلطان محمود غزنوی نے ایسا اس لیے کیا تھا تاکہ پہلے سے ان کا علاج کر دیا جائے اور اننت پال کو دوبارہ باغی ہونے کا موقع نہ دیا جائے۔ چنانچہ جب سارے سالار اور باغی سرکردہ لوگ سلطان کے پاس جمع ہو گئے تب سلطان کھل کر سب کا بغور جائزہ لیتا رہا۔ اس کے بعد اس نے سندی رائے کو مخاطب کیا۔ سلطان محمود غزنوی کے لشکر میں جو 10,000 ہندوؤں کا لشکر شامل تھا، سندی رائے اس لشکر کا سالار تھا۔ آخر اسے ہی مخاطب کر کے سلطان نے کہا، ہندوستان کے حالات سب سے بہتر تم ہی جانتے ہو، تم یہ بھی جانتے ہو کہ آئے دن ہم سے ملحقہ علاقوں میں بغاوتیں اور سرکشی کے آثار اٹھتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ جے پال ہم سے 3 بار ٹکرایا ہے، 2 بار میرے باپ سے اور 1 بار اس نے مجھ پر حملہ کیا، لیکن خداوند قدوس کا شکر اور احسان کی تینوں ہی مرتبہ اس نے مجھے اور میرے باپ کو فوز مند اور سرخرو رکھا۔ اگر تم یہ بھی جانتے ہو کہ جے پال کے بعد اس کے بیٹے اننت پال نے بھی وہی روش اختیار کی تھی اور وہ بھی ہم سے ٹکراتا رہا، اس طرح ان علاقوں میں ہمارے خلاف سرکشی اور بغاوت اٹھتی رہی۔ ایسا ہمارے لیے اس لیے خطرناک ہے کہ اننت پال کا علاقہ ہمارے علاقے سے متصل ہے۔ اگر یہاں بغاوتیں اور سرکشی کے آثار کھڑے ہوتے ہیں تو اس سے ہم براہ راست متاثر ہوتے ہیں۔ اس کے علاوہ تم یہ بھی جانتے ہو کہ یہ کراماتی آئے دن انہیں حکومتوں سے روابط رکھ کر مسلمانوں کے نقصان کا باعث بنتے ہیں۔ تم یہ بھی جانتے ہو کہ میں ان کراماتیوں کو کسی بھی صورت برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ اب میں تم سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ ہم ہندوستان کی سرزمین میں کیا احتیاطی تدابیر اختیار کریں کہ راجہ اننت پال یا اسے ملحقہ راجہ آئے دن ہمارے خلاف نہ اٹھ کھڑے ہوں اور جنگوں کی دعوت نہ دیتے رہیں۔ سلطان محمود کے اس استفسار پر سندی رائے کچھ دیر تک گہری سوچوں میں ڈوبا رہا، پھر کہنے لگا، سلطان محترم، اس سے پہلے جو جے پال 3 بار آپ سے اور آپ کے باپ سے ٹکرایا اور پھر راجہ اننت پال کئی مرتبہ پر حملہ ور ہوا اور آپ کے خلاف اس نے ہندوستان کے تقریباً سارے ہی راجاؤں کو متحد کر لیا تھا، تو اس کی بڑی وجہ ہے کہ ایسا ہندوستان کے برہمن اور پنڈت کرتے ہیں۔ یہاں تک کہنے کے بعد سندی رائے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے کہنے لگا، سلطان، میں چند علاقوں کی نشاندہی کرتا ہوں جو ان برہمنوں کے بڑے مراکز ہیں اور یہی مراکز ہندوستان کی قوتوں کو سرکشی اور بغاوت پر آمدہ کرتے ہیں۔ ان مراکز میں تھانسیر، کنوج اور مہابین جیسے علاقے سر فہرست ہیں۔ ان کے علاوہ بھی بہت سے علاقے ہیں لیکن یہ بڑے مراکز ہیں، اور پھر آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان علاقوں کے علاوہ ملتان اور کچھ دیگر ریاستوں سے بھی کراماتیوں کے تعلقات رہے۔ کراماتیوں کو ہندوستان میں آپ کے خلاف ابھرنے میں انہی برہمنوں کا خاصا بڑا حصہ ہے۔ یہاں تک کہنے کے بعد سندی رائے رکا، تب سلطان محمود غور سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہنے لگا، آخر یہ برہمن ایسا کیوں چاہتے ہیں؟ ہم نے آج تک کبھی انہیں اپنا ہدف نہیں بنایا، ان پر کبھی حملے نہیں کیے، نہ ہی ان کے مفاد کو نقصان پہنچایا، پھر وہ کیوں مقامی ہندو راجاؤں کے علاوہ کراماتیوں کو بھی ہمارے خلاف کھڑا کرنے کے لیے درپے ہیں؟ جواب میں سندی رائے نے پھر کچھ سوچا، اس کے بعد کہنے لگا، سلطان، سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ یہ برہمن اور پنڈت آپ کو درقہ خیبر کے مغرب میں دیکھنا چاہتے ہیں۔ وہ نہیں پسند کرتے کہ آپ کبھی بھی کسی بھی وقت درہ خیبر کو عبور کر کے مشرق کے علاقوں کا رخ کریں۔ انہیں خدشہ ہے کہ اگر کبھی ایسا ہوگا اور آپ ہندوستان کی سرزمینوں میں وارد داخل ہوں گے تو اسلام ہندوستان میں بڑی تیزی سے پھیلنا شروع ہوگا اور برہمنوں کے مفاد کو نقصان پہنچے گا۔ سندی رائے رکا، پھر اپنی بات کو آگے بڑھاتا ہوا وہ پھر کہہ رہا تھا، سلطان، آپ جانتے ہیں اس سے پہلے بدھ مت اور ہندو مت والے ایک دوسرے کے بدترین دشمن اور ایسے مخالف تھے کہ گردنیں ناپنے پر تلے ہوئے تھے، لیکن جب سے آپ کے ساتھ ان کی دشمنی شروع ہوئی، بدھ مت اور ہندو مت دونوں شیر و شکر ہو کر متحد ہو گئے ہیں اور انہوں نے اب اپنی زندگی کا مقصد یہ بنا لیا کہ کسی بھی صورت آپ کو اور آپ کے لشکریوں کو ہندوستان میں داخل نہیں ہونے دیں گے۔ یہی وہ لوگ ہیں جو آئے دن ہندوستان کی قوتوں کو آپ کے خلاف ابھارتے رہتے ہیں، جس کا نتیجہ میں بغاوتوں اور سرکشی کے آثار نمودار ہوتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی ہی نہیں باقی سالاروں نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ چنانچہ سلطان محمود غزنوی نے یہ جان لیا تھا کہ تھانسیر، کنوج اور مہابین اور اس جیسے اور بہت سے علاقے فساد کا موجب ہو سکتے ہیں، اور یہی مقامات برہمنوں اور سازشی لوگوں کے مراکز بھی ہیں۔ یہاں کے بت خانے سازش خانے بنے ہوئے ہیں اور نہ صرف اپنے اپنے مقامی راجاؤں پر بلکہ تمام ہندوستان پر اثر ڈال سکتے ہیں، اور یہی وہ زبردست راجا ہیں جو اننت پال کی مدد کو سب سے پہلے پہنچ سکتے ہیں۔ سلطان محمود غزنوی پر یہ بھی واضح کر دیا گیا تھا کہ ہندوستان میں پنجاب کے علاقے کو 2 طرح کی قوتیں نقصان پہنچا سکتی ہے۔ ایک طرف قروج، تھانسیر، مہابین اور کچھ اور علاقوں کے راجا پنجاب پر لاہور کی طرف سے حملہ ور ہو کر اس کے لیے خطرے کا باعث بن سکتے ہیں، جبکہ ہلواڑہ، گجرات اور اجین کی ریاستیں ذرا جنوب میں پنجاب کے ان علاقوں کو اپنا ہدف بنا سکتی ہیں۔ سلطان نے سب کچھ جاننے کے بعد کارروائی کرنے کا ارادہ کر لیا۔
मुल्तान की तरफ से सुल्तान मुतमईन था, इसलिए कि मुल्तान में सुल्तान का एक मुसलमान हाकिम मुकर्रर हो चुका था। लिहाजा उसको सबसे ज़्यादा खतरा बालाई पंजाब में बगावत उठने का था, इसलिए कि उसने सबसे पहले थानसीर पर हमला करना मुनासिब समझा था, ताकि थानसीर के राजा का वो कर्जा भी पूरा कर दे जो उसने इससे पहले एक मरतबा अनंतपाल और जयपाल का माविन बनकर दारुस सल्तनत गजनी पर हमलावर होकर सुल्तान महमूद के जिम्मे चढ़ा दिया था। निज़ वहाँ की साजिशी लोगों को भी, जो करामतियों से हरगिज कम न थे, सजा देने का तहिया किए हुए था। थानसीर और दिल्ली की रियासत अनंतपाल के इलाकों में यानी पंजाब की मशरकी सरहद से मुलहिक थी। उस रियासत पर हमला करना बगैर उसके मुमकिन न था कि अनंतपाल के इलाकों में से होकर सुल्तान महमूद अपने लश्कर के साथ गुजरे। चुनांचे सुल्तान को इस इम्तिहान का भी मौका मिल गया कि अनंतपाल का इजाज़ा ले कि वो सुल्तान महमूद के लश्कर को अपने इलाके में से होकर गुजरने देता है या नहीं, और अगर इजाज़त नहीं देता तो फिर यही समझा जाए कि वो पहले ही की तरह फिर बगावत पर आमदा होकर सीधे राह बनना चाहता है। चुनांचे सुल्तान ने अपनी रवानगी से कबल अनंतपाल को लिखा कि हमारा इरादा थानसीर पर हमलावर होने का है। लश्कर सुल्तानी तुम्हारे इलाके में से होकर गुजरेगा। मुनासिब यह है कि तुम अपने आदमी हमारे साथ मुतय्यन कर दो कि वो तुम्हारे इलाके के हुदूद से हमको आगाह करे और तुम्हारे इलाके में सुल्तान महमूद के लश्कर से किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचे। अनंतपाल ने फौरन अपने भाई की कमांडरी में 2000 सवारों का एक लश्कर पेशावर के मकाम पर भेज दिया कि सुल्तान के हमरा उस सफर में रहे और सुल्तान के लश्कर को किसी किस्म की तकलीफ ना पहुंचे। इन हालात से मालूम होता है कि अब अनंतपाल के सर से सुल्तान के मुकाबला और मुखालिफत का सवाब दूर हो चुका था और उसने मुती और फरमाबरदार रहने में ही अपनी फलाह बेहबूदी देखी थी। थानसीर चूंकि ब्राह्मणों की साजिशों का मरकज था और यही एक मंदिर था जिसका नाम सोम जग या जग सोम रखा गया था, और जहां सल्तनत गजनी की बर्बादी के लिए ब्राह्मणों ने साजिशी मरकज कायम कर रखे थे। लिहाजा उस सियासी मरकज को, जो करामाता के मरकजी मकाम से कम खतरनाक न था, तहे बाला करना महमूद का फर्ज था। महमूद के पंजाब में पहुंचने और थानसीर की जानिब जल्द अज जल्द बढ़ने का हाल सुनकर यहाँ के राजा ने अपनी मदद के लिए मीरहट, महाबूद और कनूज के राजाओं को बुला लिया था। लेकिन इन सारे राजाओं के पहुंचने से पहले ही सुल्तान आंधी और तूफान की तरह थानसीर पहुंचा। थानसीर का राजा सुल्तान महमूद की आमद का सुनते ही थानसीर छोड़कर भाग गया। इस तरह थानसीर पर सुल्तान का कब्जा हो गया था। चुनांचे सुल्तान महमूद ने थानसीर पर कब्जा करने के बाद उस मंदिर को तोड़ा जिसमें उसके खिलाफ साजिशें होती थी, और साजिशें गुरु के जिस शख्स का पता चला उसको गिरफ्तार किया गया। उसको मालूम है कि मंदिर में जो बूत रखा है उसकी निस्बत आवाम को ब्राह्मणों ने ये यकीन दिला रखा है कि जो शख्स इस बूत के सामने खुदकुशी करके अपने आप को हिलाक करता है वो उक़बा की नजात हासिल कर लेता है। ये सुनकर सुल्तान महमूद ने उस बूत को तोड़ने का हुक्म दिया ताकि इस ख्याल व फांसी और हिलाकत के नाफरीन से अकीदे से आवाम को नजात मिले। मोर फरिश्ता की रिवाज के मुताबिक सुन जग का बुत तोड़ा नहीं गया बल्कि उसको महमूद उठाकर अपने हमरा गजनी ले गया था, मगर मास्टर मिल्की मित्ता के बुत को तोड़कर उसके टुकड़े गजनी ले जाकर बुझा दिए गए थे। यही मास्टर मिल्क ये भी लिखता है कि महमूद ने दूसरे यूरश था थानसीर पर की जो मशहूर प्रस्तिशगाह थी और दिल्ली से शुमाल की जानिब कोई 70 मील के फासले पर वाक़ई थी। मालूम होता है कि अनंतपाल ने इस यूरश में उसका मुकाबला न किया, मगर चूंकि वो अब एक सरदार खिदमत गुजार के बराबर रह गया था इसलिए अपने दारुल हुकूमत लाहौर में रहा और बड़े सब्र तहम्मुल से उस हमले को देखता रहा जिसकी रोकथाम की ताब उसमें ना रही थी। अब तक सुल्तान महमूद गजनवी की जिन लड़ाइयों और यूरोशों का जिक्र हुआ उनमें से एक भी ऐसी नहीं जिसको सुल्तान महमूद की मुल्क गिरी के शौक या हिंदुस्तान वालों को गुलाम बनाने और मंदिरों को नुकसान पहुंचाने की ख्वाहिश का नतीजा कहा जा सके, बल्कि हर मरतबा करामता या हिंदुस्तान के राजाओं की पेशकदमी ने उसको लड़ाई की दावत दी। अगर वो दुश्मन था तो करामता का दुश्मन, हिंदू या बुतमत से मन हैसुल कौम उसका कोई अदावत या पुरखाश और दुश्मनी नहीं थी। थानसीर पर ही सुल्तान महमूद गजनवी का वाहिद हमला है जिसमें बुत तोड़ने या यहाँ से उठाकर गजनी ले जाने और हिंदुओं को गिरफ्तार कर ले जाने का जिक्र पहली मरतबा आता है। और लुत्फ यह है कि इसी हमले में महमूद के साथ 12,000 हिंदुओं का एक लश्कर भी मौजूद था, जिसमें से 10,000 हिंदू तो बाकायदा मुस्तकिल तौर पर उसके लश्कर का हिस्सा थे और 2,000 का लश्कर लाहौर के राजा अनंतपाल ने मुहैया किया था जिसकी कमांडरी अनंतपाल के भाई के हाथ में थी। सुल्तान महमूद ने जब खालिस इस्लामी लश्कर लेकर उस मुल्क में जाकर राजाओं का मुकाबला किया तो किसी मंदिर को ढाया न किसी मूर्त को तोड़ा, लेकिन जब हिंदुओं के इस लश्कर में भर्ती हो जाते तो मंदिर और बुत को तोड़ने और हिंदुओं के अकीदे हिंदुओं को कैद करके गजनी ले जाने का वाक़या ज़हूर में आता है। बात यह कि उन हिंदू लश्करियों और हिंदू सरदारों ही ने जो महमूद के लश्कर में नौकर थे महमूद को उन साजिशी मरकज़ों, साजिशी लोगों, साजिशी कार्रवाइयों का पूरा हाल बताया और सुनाया था और इसीलिए महमूद ने थानसीर में वो कार्रवाई की जिनका ऊपर जिक्र हुआ।
जिस तरह सुल्तान महमूद गजनवी ने करामाता को कत्ल किया और गिरफ्तार किया, इसी तरह थानसीर के साजिशी मरकज से साजिशी हिंदुओं को गिरफ्तार किया। इसके लश्कर के हिंदू और अनंतपाल के 2000 के हिंदू पर मुश्तमिल फौज भी जो उसके हमरा थी, कोई इजहार नाराजगी नहीं किया, ना ही हिंदुओं ने सुल्तान के मुलाजिमत को तर्क किया। ये जो कुछ भी हुआ हिंदुओं ही की रहनुमाई में हुआ, बस इसका कार्रवाई को मजहबी तासुब का नतीजा करार देना, सियासी ज़रूरत और सियासी तकाजे को फरामोश कर देना अक्ल व अदल के सरासर खिलाफ है। सुल्तान महमूद गजनवी की जगह कोई दूसरा शख्स होता तो उसके लिए भी ये तमाम कार्रवाइयाँ जायज़ और नागुज़ीर होती। एक बादशाह और एक सुल्तान के इखलाक और उसकी ज़रूरतों को एक साधु की हालात और एक साधु की ज़रूरतों पर कियास करना परले दर्जे की हिमाकत और नाबीनी है। चुनांचे इस तरह मुल्तान के बाद थांसी पर भी सुल्तान का कब्जा हो गया था। रंग महल के अपने केसर में एक रोज राजा आनंदपाल अपने बेटे जयपाल सानी और अपने खूबसूरत और हसीन बहन कौशल देवी के साथ बैठा किसी मौजू पर गुफ्तगू कर रहा था कि अचानक कौशल देवी ने बात का रुख बदला और किसी कदर फिक्रमंदी में अपने भाई आनंदपाल को मुखातिब करके कहने लगी, भाई काशी न जाने किस हाल में होगी। पहले तो मैं बड़ी परेशान थी कि वो कहाँ गई। इसके बाद जब ये खबरें आई कि उसने मुसलमानों के सालार अब्दुल्ला करातगीन से शादी कर ली है तो मुझे हैरत भी हुई, ताज्जुब भी, दुख और अफसोस भी हुआ। पर भाई बाद में मैं ये सोचने लगी शायद उस काम में भी मेरी बहन काशी का कोई मंसूबा बंदी हो और वो अब्दुल्ला से शादी करके उसका खात्मा करने की दर पे होगी। इसलिए कि अब्दुल्ला ने जहाँ इंफरादी मुकाबले में कोई राज को जेर किया वहाँ राज कुन्नूर को भी मौत के घाट उतार दिया। इस वक्त मेरा इरादा, मेरा ज़हन में गुमान यही था कि काशी महमूद गजनवी के सालार अब्दुल्ला से राज कुन्नूर का इंतकाम लेगी। लेकिन अब जबकि उसके शादी को कई माह गुजर चुके हैं, उसकी तरफ से किसी रद्द-ओ-अमल या अब्दुल्ला से मुतालिक कोई बुरी खबर सुनने में नहीं आई, तो मैं समझती हूँ शायद काशी कुमारी किसी और नियत से वहां गई थी। यहाँ तक कहने के बाद कौशल देवी खामोश हो गई। आनंदपाल उस वक्त बीमार था और बिस्तर पर लेटा हुआ था। कुछ देर तक बड़े गौर से अपनी बहन कौशल देवी की तरफ देखता रहा, फिर कहने लगा, मेरी बहन, ये तेरा वहम और तेरा गलत जन्म गुमान है। अभी चंद दिन पहले ही मेरे मुखबिर इत्तला कर चुके हैं कि काशी अब्दुल्ला के साथ खुशगवार अज़दवाजी जिंदगी बसर कर रही है। मेरे मुखबिरों ने भी ये भी बताया कि गुज़िश्ता हफ्तों के दौरान महमूद गजनवी एक लश्कर लेकर गौर और हिरात के करामातों पर हमलावर हुआ था। उस हमले में उसके साथ उसके दो बड़े सालार अब्दुल्ला और अहमद न्यालकीन थे। अब्दुल्ला करातगीन के साथ काशी भी उस मुहिम में शामिल थी, इसलिए कि मुसलमानों के सुल्तान ने अपने सालारों और अपने लश्करियों को अपने अहले खाना के साथ रखने की इजाज़त दी थी। मुझे मेरे मुखबिरों ने यह भी बताया कि काशी कुमारी ज़्यादा से ज़्यादा अपने शोहर अब्दुल्ला के साथ रहना पसंद करती है। यहाँ तक कहने के बाद आनंदपाल खामोश हुआ, दम लिया। उसके बाद अपनी बात को आगे बढ़ाता हुआ वो कह रहा था, कौशल मेरी अजीज बहन, जो कुछ मैं समझता हूँ वो ये कि मेरी बहन काशी अब्दुल्ला को पसंद करने लगी थी। कौशल मेरी बहन, इसमें काशी का भी कोई कसूर नहीं। तूने देखा जब मेरा बाप मुसलमानों के सुल्तान से टकराया था तो कोई राज इनफरादी मुकाबले के लिए निकला था और ऐसा सब कुछ तुम्हारे कहने पर किया था। तुम चाहती थी कि कोई राज हमेशा मुसलमानों के साथ टकराव के दौरान इनफरादी मुकाबले के लिए निकला करे और एक एक करके सुल्तान महमूद के सालारों का खात्मा करता चला जाए। इस तरह मुसलमानों के सुल्तान के लश्कर के अंदर जोश पैदा हो जाएगा। कौशल, तुम्हें इस पर बड़ा फक्र और घमंड था कि कोई राज से कोई तेगजन का मुकाबला नहीं कर सकता, लेकिन तूने देखा अब्दुल्ला करातगीन ने तो बड़े आसानी से कोई राज को अपने सामने तेगजनी के इस मुकाबले में जेर करके उसकी गर्दन काट दी थी। इसके बाद जब मैं अपने लश्कर के साथ महमूद से टकराया तब कोई राज का इंतकाम लेने के लिए बीढ़न का राजा राज कुन्नूर इंफरादी मुकाबले के लिए उतरा। उसे भी अपनी तेगजनी और हर्ब ज़र्ब के फनून में हुनरमंदी और बड़ा फख्र था, लेकिन मेरी बहन, तूने देखा कि अब्दुल्ला उसका सर काटने में भी कामयाब हो गया। इसके बाद तीसरी जंग में मुझे उम्मीद थी कि अब्दुल्ला करातगीन उस इंफरादी मुकाबले में जेर हो जाएगा और हम उससे कोई राज और राज कुन्नूर दोनों का इंतकाम लेने में कामयाब हो जाएंगे। इसलिए कि तीसरी जंग के दौरान वहशी और खुखार खोखरों का सालार नंदी वर्दन मुकाबले के लिए उतरा था। पर मेरी बहन, तूने अपनी आंखों से देखा था कि अब्दुल्ला करातगीन ने नंदी वर्दन का क्या हशर नशर किया, उसे भी जिलत और खौखारी की मौत मारा। कौशल, मेरा अपना अंदाजा कि अब्दुल्ला की इन्हीं कारगुजारियों से मुतासिर होकर काशी कुमारी उसकी तरफ माइल होगी। इसी बिना पर जब तुम दोनों बहनें अब्दुल्ला करातगीन और नंदी वर्दन का मुकाबला देखने में मौत हुई तब काशी कुमारी बड़ी राजदारी से वहां से हट गई और फिर अपने पड़ाव पर आई और एक लंबा चक्कर कावा काटते हुए मुसलमानों के लश्कर में चली गई। इसके बाद जो तफसील लोगों ने बताई वो ये है कि उसने सुल्तान महमूद के लश्कर के काजी के यहाँ क़याम किया, वहां उसने इस्लाम कबूल किया। फिर लश्कर के काजी से ही उसने अब्दुल्ला से अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया, जिसके नतीजे में अब्दुल्ला से उसकी शादी हो गई। मेरी बहन, ऐसी हालत में तुम सोचो काशी कुमारी क्यों अब्दुल्ला से बीढ़न के राज कुन्नूर का इंतकाम लेगी।
और ये भी याद रखो काशी कुमारी ने किसी भी लम्हे कभी भी राजकुमार से मोहब्बत नहीं की थी, बस हमारे बाप ने उसकी मंगनी तय कर दी थी। और मंगनी भी उस वक्त हुई कि जिस वक्त काशी अभी बुलुगत की हद तक नहीं पहुंची थी, लिहाजा राजकुमार से वो किसी भी मौके पर मुतासिर नहीं हुई। अब्दुल्लाह करातगीन पहला शख्स था जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हुई और उसी के पास चली गई। यहाँ तक कहने के बाद अनंतपाल खामोश हो गया था। जवाब में कौशल देवी कुछ देर सर झुकाए गहरी सोचों में खोई रही, फिर दुख भरे अंदाज में कहने लगी, इसका मतलब है कि अब मैं कभी भी अपनी बहन काशी से नहीं मिल सकूंगी। मैं इस बात पर भी हैरान हूं कि काशी एक लम्हे भर के लिए मेरे बगैर नहीं रहती थी। अपने घर के हर फर्ज से वो बेपनाह मोहब्बत करती थी, और अब मैं देखती हूँ कि वो हम में से नहीं, हमें याद भी नहीं करती होगी। इस मौके पर तंजिया से मुस्कुराहट में अनंतपाल के चेहरे पर नमूदार हुई कर कहने लगा, कौशल मेरी बहन, तुम किस किस्म की बातें करती हो? इसमें शक को शुबा नहीं कि काशी घर के हर फर्ज से बेपनाह मोहब्बत और प्यार करती थी। इसमें भी कोई शक नहीं कि वो तुम्हारे बगैर एक लम्हा भी नहीं रहती थी। लेकिन मैं समझता हूँ कि घर के हर फर्ज से उसे जिस कदर मोहब्बत और चाहती, वो सारी मोहब्बतें, सारी चाहते उसने अब्दुल्लाह की मोहब्बत पर निछावर कर दी। अनंतपाल के अल्फाज का जवाब कौशल देवी देना ही चाहती थी कि अनंतपाल का चौकीदार उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और अनंतपाल को इत्तला दी कि बीढ़ंड के राजा प्रेमदेव का एक कासिद आया है और वो अनंतपाल से मिलना चाहता है। अपने चौकीदार के अल्फाज का जवाब कौशल देवी देना ही चाहती थी कि अनंतपाल का चौकीदार उस कमरे के दरवाजे पर नमूदार हुआ और अनंतपाल को इत्तला दी कि बीढ़ंड के राजा प्रेमदेव का एक कासिद आया है और वो अनंतपाल से मिलना चाहता है। अपने चौकीदार के अल्फाज सुनकर अनंतपाल ने अपनी बहन कौशल की तरफ देखा और कहने लगा, कौशल मेरी बहन, तुम साथ वाले कमरे में चली जाओ। मैं बीढ़ंड के कासिद को बुलाता हूँ और देखता हूँ कि बीढ़ंड के राजा प्रेमदेव की तरफ से क्या पैगाम लेकर आए हैं। इस पर कौशल देवी अपनी नशिस्त से उठी और कैसर के उस कमरे से मुल्हिक जो दूसरा कमरा था उसमें चली गई। फिर हाथ के इशारे से अनंतपाल ने कासिद को भेजने का लिए कहा। तब चौकीदार पीछे हटा। थोड़ी देर बाद कासिद अंदर दाखिल हुआ। हाथ के इशारे से ही उसने अनंतपाल ने उसे अपने सामने बैठने के लिए कहा। जब वो बैठ गया तो कुछ देर तक अनंतपाल घुसता रहा। फिर बीढ़ंड के कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, मैं दरअसल गुज़िश्ता कई महीनों से बुरी तरह बीमार और अलील हूँ। तुम ये कहो कि तुम्हारे राजा प्रेमदेव ने तुम्हें किस गरज के तहत मेरी तरफ भेजा है। इस पर आने वाला कासिद कहने लगा, महाराज आप जानते हैं कि आपकी बहन काशी हमारे राजा प्रेमदेव की राजकुमार राजकुन्नूर की मंगेतर थी। इसके बाद हमारे राजा ने चाहा था कि काशी कुमारी की सगाई प्रेमदेव के साथ प्रेमदेव के दूसरे राजकुमार गोविंद राज से कर दी जाए, लेकिन काशी कुमारी ने ऐसा करने से इनकार कर दिया था। अब प्रेमदेव चाहता है कि हमारे और आपके दरमियान पुराने ताल्लुकात और रिश्ते और राब्ते को खत्म नहीं होना चाहिए। प्रेमदेव की पहली ख्वाहिश है कि अगर आप पसंद करें तो आपकी दूसरी बहन कौशल देवी की सगाई प्रेमदेव के दूसरे बेटे गोविंद राज से कर दी जाए। इस तरह दोनों राजधानियों के दरमियान एक इत्तेफाक और ताउन रहेगा और दोनों की इस तरह मिल बैठने से दोनों राजधानियों की ताकत और कुव्वत में भी इजाफा होगा। दूसरी बात जो हमारे राजा चाहता है वो ये कि आप अपनी तरफ से अपने कुछ मखसूस आदमी मुकर्रर करें जो गजनी शहर में काशी कुमारी से राब्ता कायम करे और उसे इस बात पर आमदा कर ले कि काशी कुमारी अपने शोहर अब्दुल्लाह करातगीन को मौत के घाट उतार दे कर वापस लाहौर आ जाए। अगर वो ऐसा करने में रजामंद हो जाए तो मुसलमानों के एक ऐसे बड़े सालार का खात्मा हो जाएगा जिसने कोई राजकुमार और नंदीवर्धन को इनफरादी मुकाबले में जेर किया। ऐसा करके हम अपने इन मरने वाले सालारों का इंतकाम भी ले सकते हैं। अगर काशी ऐसा करने पर रजामंद ना हो तो फिर उसे मौत के घाट उतार दिया जाए। यहाँ तक कहने के बाद वो कासिद जब दम लेने के लिए रुका तब राजा अनंतपाल जो बीमार अलील था कुछ देर तक लंबे लंबे सांस लेता रहा, साथ ही कुछ सोचता भी रहा। यहाँ तक कि बीढ़ंड के कासिद को मुखातिब करके कहने लगा, तुम अपने राजा प्रेमदेव की तरफ से दो मौजू लेकर आओ हो। पहला मौजू ये कि मैं अपनी दूसरी बहन कौशल देवी को प्रेमदेव के दूसरे बेटे गोविंदराज से मंसूब करूँ। पहले इस मसले को हल करते हैं, उसके बाद दूसरे मसले की तरफ आते हैं। इसके साथ ही अनंतपाल ने आवाज देकर कौशल देवी को बुलाया। कौशल देवी अपना चेहरा ढांपते उस कमरे में दाखिल हुई और अपने भाई के कहने पर उस नशिस्त पर बैठी जिस नशिस्त से उठ कर गई थी। फिर उस कासिद की तरफ देखते हुए कहने लगी। अनंतपाल कहने लगा, ये मेरी दूसरी छोटी बहन है। इसे मैंने इसलिए बुलाया कि तुम्हारे मौजूदगी में सारी गुफ्तगू हो। मेरे अजीज, शादी चूंकि मेरी इसी बहन की है लिहाजा फैसला भी यही करेगी। फिर अनंतपाल ने कौशल देवी की तरफ देखा, कहने लगा, कौशल ये बीढ़ंड के राजा प्रेमदेव का कासिद है। ये दो किस्म के पैगाम लेकर आया है। पहला पैगाम तुम्हारी जात से मुताल्लिक है। चाहता है कि तुम्हारी सगाई बीढ़ंड के राजा प्रेमदेव के दूसरे बेटे गोविंद राज से कर दी जाए। अब बोलो, क्या तुम इसके लिए रजामंद हो? इस मौके पर लम्हे भर के लिए कौशल देवी ने खा जाने वाले अंदाज में बीढ़ंड के इस कासिद की तरफ देखा। फिर तल्ख लहजे में कहने लगी, मैं इस सगाई रिश्ते के लिए हरगिज तैयार नहीं हूँ। अपनी बहन का यह जवाब सुनकर अनंतपाल मुस्कुरा दिया, जबकि बीढ़ंड के कासिद का मुंह लटक गया था। यहाँ तक कि अनंतपाल ने उसे मुखातिब किया, तुम्हारे एक सवाल का जवाब तुम्हें मिल गया है।
इसमें चूंकि मेरी बहन मुलविस थी, लिहाजा जवाब भी उसी देना चाहिए था, और इसका जवाब तुम सुन चुके हो। यही जवाब वापस जाकर बीडहन के हाकिम को देना। अब दूसरा मसला भी मैं अपनी छोटी बहन की मौजूदगी में ही तय करना चाहता हूँ। मेरी बहन, एक मसला तुम्हारी सगाई का था, तुमने जवाब दे दिया, वो मसला हल होगा। अब दूसरा मसला बीडहन के राजा की तरफ से ये लेकर आया है कि मैं अपने कुछ मखसूस आदमी मुकर्रर करूँ जिन्हें मैं गजनी रवाना करूँ, वो काशी कुमारी से रब्ता कायम करे और उसे इस बात पर अंगेख्त करें कि वो अपने शोहर अब्दुल्ला को मौत के घाट उतार दे। अगर वो ऐसा करते हैं तो हम कोई राजकुन्नूर और नंदीवर्धन का इंतकाम ले सकते हैं। और उसका ये भी कहना है कि अगर काशी कुमारी ऐसा करने पर रजामंद ना हो तो फिर काशी कुमारी ही को मौत के घाट उतार दिया जाए, इसलिए कि ये उसके लिए सजा होगी कि उसने क्यों सुल्तान महमूद के सालार को अपनी जिंदगी का साथी बनाया। अनंतपाल जब खामोश था तब कुछ देर तक कौशल देवी सोचती रही, फिर कहने लगी, जहां तक अब्दुल्ला के कत्ल का मामला है तो इस पर तो मैं इत्तेफाक करती हूँ कि इसका खात्मा होना चाहिए, लेकिन यह खात्मा मेरी बहन के जरिए नहीं होना चाहिए। अगर ये काम काशी कुमारी से लिया जाता है तो फिर काशी कुमारी ये काम करते हुए यकीनन पकड़ी जाएगी और मौत के घाट उतार दी जाएगी, और मैं ऐसा हरगिज नहीं चाहूंगी मेरी बहन के साथ ये मामला हो। ठीक है, इसने अब्दुल्ला से शादी करके अपनी जिंदगी का सबसे बड़ी गलती की है जिसकी कोई तलाफी नहीं। इसके बावजूद वो मेरी बहन है और उससे मुझे बेपनाह मोहब्बत है। मैं किसी भी सूरत ये पसंद नहीं करूंगी कि उसे कोई गुज़र पहुंचे, कोई नुकसान पहुंचे। हाँ, अब्दुल्ला का अगर कोई खात्मा करना चाहता है तो उसके लिए कोई और तरीकाकार इख्तियार किया जाए। इस पर अनंतपाल कहने लगा, अब्दुल्ला को गजनी जाकर मौत के घाट उतारना इतना आसान नहीं और सहल नहीं जितना कोई समझ ले। वो सुल्तान के चंद बड़े सालारों में से एक है जिनकी हिफाजत का खातिर खा एहतमाम होगा, और अगर किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश की तो वो खुद भी जिंदा सलामत नहीं रहेगा। लिहाजा बीडहन के राजा प्रेमदेव का ये कहना कि हम अपने कुछ मखसूस आदमी मुकर्रर करें जो अब्दुल्ला को मौत के घाट उतार दे और ये काम काशी कुमारी के जरिए हो, और अगर काशी कुमारी ना माने तो काशी कुमारी को मौत के घाट उतार दिया जाए। ये काम इतना आसान है जितना समझा जा रहा है। मुंह से बात कर देना कोई और बात है, लेकिन उसे अमली तौर पर अंजाम देना कोई और काम। लिहाजा ये नामुमकिन है हम अपने आदमी भेजें और अब्दुल्ला का खात्मा करें। जहां तक हमारी बहन का ताल्लुक है तो हम किसी भी सूरत पसंद नहीं करेंगे तो उसे कोई नुकसान पहुंचे। वो हमारी बहन, अगर उसे अब्दुल्ला से मोहब्बत हो गई थी और वो उसकी तरफ माइल हुई थी तो उसने उसे अपनी जिंदगी का साथी बना लिया है, तो ऐसा करने का उसे पूरा हक है। जहां तक दीन धर्म का ताल्लुक है तो ये भी जाती मामला है। अपने लश्कर से भागकर काशी कुमारी जो मुसलमानों के सुल्तान के लश्कर के काजी शिराज के पास गई, वहां उसने इस्लाम कबूल कर लिया, तो ये भी काशी कुमारी की दिल की पुकार थी। ऐसा करके अब्दुल्ला के करीब होना चाहती थी और यकीनन वो अपने मकसद में कामयाब रही। लिहाजा हम ना ही उसे अपने मकसद का नाकाम करेंगे, ना ही उसकी जान के दर पे होंगे। यहाँ तक कहने के बाद अनंतपाल रुका, कुछ सोचा और उसके बाद बीडहन के राज प्रेमदेव के खासियत की तरफ देखते हुए कहने लगा। वापिस जाकर प्रेमदेव से कहना कि मैंने तुम्हारी मौजूदगी में अपनी बहन कौशल देवी से बात की और उससे उसके बेटे गुलिंदराज से शादी करने पर रजामंद नहीं है। जहां तक तुम्हारा दूसरा मसला है तो मेरी तरफ से राज को ये पैगाम देना कि हम किसी भी सूरत पसंद नहीं करेंगे काशी कुमारी की जान को खतरा हो। अगर ऐसा हो तो हम उसकी हिफाजत करेंगे। हाँ, अगर प्रेमदेव अपने बेटे राजकुन्नूर का इंतकाम अब्दुल्ला से लेना चाहता है तो फिर वो अपने कुछ आदमी मुकर्रर करे जो गजनी जाकर या किसी और मौके पर अब्दुल्ला पर हमलावर हो, उसका खात्मा करे। इस तरह वो अपने बेटे राजकुन्नूर का इंतकाम ले ले। जो दो बातें तुम लेकर आए थे, तुम्हारी इन दोनों बातों का जवाब मैंने दे दिया है। अब तुम आराम करो, चंद दिन यहाँ क्याम करने के बाद मेरी यही दोनों जवाब जाकर अपने राजा से कह देना। इसके साथ ही अनंतपाल ने अपने चौकीदार को आवाज दी और जब वो आया तो अनंतपाल के कहने पर वो बीडहन की खासियत को अपने साथ ले गया था।